Good morning students, welcome back again to the 11th class IP classes. In the last class we have started the last unit, that is the emerging trends of the information technology, in which we have discussed artificial intelligence, machine learning, neural network, robotics and then immersive experience. So the last topic that we have discussed, that are the types of the immersive experience. So there are the 4 types of the immersive experience, that are the virtual reality, augmented reality, mixed reality and the digital twin. In today's class we are going to discuss the next emerging trends of the information technology, that is the big data. Today there is a very good career scope in such a big data. So what is the big data? As we know that we have lot of data, lot of information within the internet, and we can say that internet is a pool of information. Internet बिल्कुल एक pool की तरह, एक ocean of information है. But the thing is that we still don't know that how can we acquire the right information at the right time. Right information को right time पे हम कैसे access कर सकते हैं? That the thing we have to discuss within the big data. So basically big data analysis क्या होता है? Big data जो है, हमारे पास बहुत सारा data है, millions of billions of data है. We want to manage that data, we want to analyze that data. उस डेटा में से हमारा required डेटा क्या है, उस डेटा को निकालने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, लाइक द डिफरेंशिएशन और सम फॉर्मूलाज, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, उस डेटा को फेच करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड एज वेल एज उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So that is overall the big data analysis. As we know that Google is a search engine. Google पे आप जो भी सर्च करते हैं उसका कोई ना कोई रेस्पॉन्स हमको जरूर मिलता है. यानी Google का जो डेटाबेस है उसमें काफी सारा डेटा है, तो वो सारे डेटा को कैसे मैनेज करता है, दैट इज द बिग डेटा. So if we want to define the big data, that big data is a field. Big data अपने आप में एक पूरा फील्ड है, एक ब्रांच है. Big data is a field that treats ways to analyze. ये आपको वो तरीके बताता है जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं. that is way to analyze, systematically extract. ये आपको वो तरीके बताता है जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो, सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सिस्टमैटिकली एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम और अदरवाइज deals with data sets that are too large or complex. और डेटा सेट्स के साथ आप डील कर सकते हो जो कि बहुत बड़े हैं, टू लार्ज और टू कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है. टू बी डील by traditional data processing application software. हमारे पास कुछ सुटेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं that are specially designed for data processing part. That applications are known as the data processing application software. With the help of that software, we can analyze our big data, systematically extract the information. We have a lot of data, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में, उसमें से अपने रिक्वायर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. रिक्वायर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे डेटा सेट जो हमें गिवन है, जो कि बहुत बड़ा है एज वेल एज कॉम्प्लेक्स है, उसको हम ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके डील कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं. सो ऑल दैट आर द पार्ट ऑफ द बिग डेटा. इसके अलावा एज डेटा सेट्स ग्रो, जैसे जैसे डेटा हमारा बढ़ता चला जाता है, एज वी नो डे बाय डे डेटा इज इंक्रीजिंग.
हर डेली आपका डेटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपके पास नई नई कोटेशन, नई नई एनालिसिस आती जा रही है. सो एज अ डेटा सेट्स ग्रो रैपिडली, डेटा सेट्स ग्रो रैपिडली, जितना डेटा सेट्स आपका बढ़ता चला जा रहा है रैपिडली टू अ सर्टेन एक्सटेंट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये बढ़ता चला जा रहा है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज दे आर, उसका रीजन है बिकॉज दे आर increasingly gathered, because they are increasingly gathered, because they are increasingly gathered by cheap and numerous information, by cheap and numerous information, by cheap and numerous information, that sensing internet of things, that sensing internet of things devices such as internet of things devices such as mobile device, aerial devices, mobile devices, aerial devices, software, mobile devices, aerial devices, software locks, cameras, etc. तो जैसे जैसे डेटा सेट बढ़ता चला जाता है एक सर्टेन एक्सटेंट पर जाने के बाद हमें क्या करना है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंगली गैदर हो रहा है बाय चीप एंड न्यूमेरल्स इंफॉर्मेशन. उन डेटा में जो इतना सारा डेटा हमें गिवन है, उन डेटा में काफी सारी चीप और न्यूमेरल्स इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है. उन चीप एंड न्यूमेरल इंफॉर्मेशन में हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसमें से राइट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज द बिग डेटा एनालिसिस. उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल डिवाइस है, एरियल डिवाइसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर लॉक कैमरास होते हैं. तो उनसे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में होती है, उसमें से हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गैदर करना आना चाहिए. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है वेदर फॉरकास्टिंग. मौसम की जानकारी को फॉरकास्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं रिलेटेड विद द टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेशर, फोर्स एंड सो ऑन. उन सारी इंफॉर्मेशन में से हम कुछ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं बाय यूजिंग ए सुटेबल एक्सप्रेशन, differentiation and so on, and after the analysis of that information we will provide the required data, and that required data is the weather forecast data कि next day weather कैसा है, कैसा रह सकता है, उसका हम क्या करते हैं, एक probable idea आपको provide करते हैं. So that is also possible through the big data analysis. So today big data is a very large concept, very recent concept जिसमें काफी सारे topics included हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सेंसर्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंसर्स. सेंसर्स बेसिकली कुछ डिवाइसेस हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया गया है कि वो अपनी सेंसिंग पावर से, सेंसिंग पावर यानी इसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड रेस होती हैं, उनका यूज करके ये आपकी सराउंडिंग के एरियाज को सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद वो आपको एक प्रोबेबल आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की होगी, यानी आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट कैसा है. कुछ सेंसर्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है वाइब्रेशन को गैट करने के लिए, कुछ सेंसर्स को डिजाइन किया जाता है लाइटिंग एरियाज को फोकस करने के लिए. तो सेंसर्स आर बेसिकली sensible devices. Sensors are basically sensible devices that are used to sense surrounding conditions, to sense surrounding conditions or environment, to sense surrounding conditions or environments, and then provide feedback,
feedback to the suitable user, और उस फीडबैक के बेसिस पर फिर हम फर्दर डिसीजन लेते हैं, फर्दर अपनी एनालिसिस करते हैं। तो सेंसर से रिलेटेड और भी चीजें हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।